Okay, so today we'll start with the first chapter of your textbook, that is reproduction in plants. So we all know that when we are talking about reproduction, we have two different types of reproduction, right? Or rather, I should say two different modes of reproduction. So what are the two different modes of reproduction? One will be your asexual reproduction, right? And the other will be your sexual reproduction. Right? These are the two modes of reproduction. Now, what is the basic difference between asexual reproduction and sexual reproduction? That is simple, that when I'm saying that it is asexual reproduction, so or else let's first check on sexual reproduction. So when I'm saying sexual reproduction, I'm making one thing very clear, that here there will be something fusing, in the sense in sexual reproduction, there what will take place is fusion. Fusion of what? Fusion of gametes. Or in simple words, can I say in sexual reproduction, what basic thing will happen is that two parents will be involved in sexual reproduction, right? So two parents are involved in sexual reproduction, but obviously बात है इसमें से एक होगा male, the other one will be female, right? Now here obviously now we are thinking about humans, but the same thing goes with the plants itself. Plants में भी वही चीज हो रहा है, एक होगा जो male part होगा of the plant, एक होगा जो female part होगा of the plant. Now कुछ क्या होता है, plants sometimes what happens कि कोई plant ऐसा होता है कि ये plant सिर्फ is bearing only male part of the plant, तो वो पूरे प्लांट में सिर्फ मेल पार्ट होगा. Whereas कुछ ऐसा होता है कि a plant will have only female part, okay? Whereas we also have few or rather I should say maximum plant groups ऐसे होते हैं जो bisexual होते हैं. In what way? कि उनमें male and female, okay, both male and female both reproductive parts are present. That means that particular plant itself is enough to carry out the process of reproduction alone. It doesn't need any kind of a different plant to participate in that, right? Why? Because male and female both parts are present in that. Now, which is the reproductive part? Now, obviously, when we are saying male and female, parts are involved into reproduction, so there has to be some reproductive parts involved, right? In plants, flowers are the ones which are involved in reproduction, right? So flower is nothing but the reproductive part of the plant. So when I'm saying कि this plant is reproducing, that means this plant में कौन सा part होगा? Leaf, roots, वो सब vegetative parts होते हैं. जो flower होता है, वो flower जो होगा वो होगा तुम्हारा reproductive part of the plant, right? So this is about your sexual reproduction कि obviously दो parents involved हैं, एक male है, एक female है, right? मतलब male part है, female part है. And what is involved? The flower, that is the flower part of the plant is involved. And there will be fusion of gametes which will be taking place. एक gamete होगा जो male gamete होगा, दूसरा gamete होगा जो female gamete होगा, and they will be fusing together to give rise to the further offspring. Right? So this is about your sexual reproduction. Let's see what happens in asexual. It will be completely opposite of asexual. जैसे यहाँ पे fusion हो रहा था, यहाँ पे there won't be any fusion taking place. Okay, so यहाँ पे कोई fusion नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे दो parents involved है, यहाँ पे only single parent will be involved. Okay, so there you don't need two parents over here. You will need only single parent who will be participating in asexual reproduction. Now यहाँ पे fusion हो रहा है, यहाँ पे fusion नहीं होगा. Why fusion नहीं होगा? Because यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है. तो जो पेरेंट इन्वॉल्व है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको और किसी प्लांट की जरूरत नहीं है या और किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं है. वो पूरा का पूरा प्लांट अलग अलग तरीकों से
रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन asexual reproduction. We'll definitely start with the first part, that is asexual reproduction in plants. Okay, so it's यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ फ्लावर है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है. Asexual reproduction में you don't necessarily need flower. You can reproduce in any way. अलग अलग तरीके होंगे जो हम आगे देखेंगे कि what all are the ways for reproducing through plants. Okay. So let's focus on our asexual part. So यहाँ पे I'm gonna start with asexual part only. Achha, it's not coming in your boards. Okay, no problem. So should I just like give you the overview या फिर वो पूरा का पूरा skip कर दूँ, directly start करूँ with sexual reproduction? Okay, fine, no problem. I'll skip it completely. Let's start with sexual reproduction then. Sexual reproduction in plants. Okay. So when I'm saying sexual reproduction in plants, now in that, what is involved? What is the main thing involved in sexual reproduction in plants? I have already answered this question. That is the reproductive part of the plant, which is flower. So firstly, we will gonna study only about flower. कि पहले तुम्हारा जो sexual reproduction in plants है, उसमें से सबसे पहला 3 parts हम लोग study करने वाले हैं. एक तो तुम्हारा flower. Okay, I'm just giving you an overview. First, what we will study is about flower. ठीक है? Flower एक बार study करने के बाद, we will specifically study about male reproductive part. Male reproductive system. Then we'll do female reproductive system. Okay, now along when we are doing this male reproductive system, तो male reproductive system के time पे main जो हम लोग study करने वाले हैं वो along with male reproductive कि उनका body organ जैसा system कैसा है, apart from that we will also do your gamete formation कि male का gamete formation कैसा होता है. ठीक है, and same will go with female का gamete formation. Okay, now apart from that, एक बार तुमने देख लिया कि फ्लावर कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है, फिर तुम देखोगे कि मेल गैमेट कैसा है, then you will check on female gamete कैसा है, and later on once you are clear कि how these gamete formation is taking place, male gamete कैसा दिखने वाला है, female कैसे दिखने वाला है, फिर तुम पढ़ोगे कि ये चीज फर्टिलाइज कैसे होती है. Okay, so basically gametes तो मिल गए, बट ये गैमेट्स अब फ्यूज कैसे होंगे, वो फ्यूजन कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके, सो फर्टिलाइजेशन में भी यू विल स्टडी डिफरेंट स्टेप्स कि ये मेल गैमेट सिस्टम का जो मतलब मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट को अप्रोच कैसे करेगा, वो वहां तक जाएगा कैसे, उसके भी अलग अलग तरीके होंगे विच वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. ओके, so that is about your flower, your male, your female reproductive system and gamete formation. Then you're gonna do the fertilization part कि how these things are approaching and fertilizing at the end. और फिर वो fertilization के बाद तुम्हारा नया plant कैसे बन रहा है वो part आ जाएगा. So I'm not writing it over here. These are the main points जो हमको cover करने हैं. ठीक है? So first we will check on कि तुम्हारे flower का structure कैसा है. Okay, so here we are going to talk about flower.
एज यू राइटली सेड, फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट जिसमें से एक पार्ट है तुम्हारा one is your male part. So when I'm saying male part of the flower, तो उसके लिए the word is androecium, right? Next is the female part of the flower, that is gynoecium. Then you have calyx, right? And lastly you have corolla. बराबर? Corolla is the petals, na? Corolla is the petal one, the colorful one. The calyx is the green part which is there at the end of the flower, right? And obviously male and जो female है, that is androecium और gynoecium है, वो तुम्हारा essential. अब इसको जो flower के जो parts होते हैं, इसको हम बोलते हैं whorls. ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोल्स. अभी ये जो फीमेल और मेल, ये दो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनको अगर मैं बोलना चाहूं तो इनको हम कहते हैं एसेंशियल वोल्स. ठीक है, ये दोनों को हम बोलते हैं एसेंशियल वोल्स. ठीक है, व्हाई आर वी कॉलिंग इट एसेंशियल? वी आर कॉलिंग इट एसेंशियल बिकॉज ये जो है ये मेन है. वी आर स्टडिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, राइट? तो बट ऑब्वियसली बात है, जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल पार्ट कौन सा है ना? तो वो मेल और फीमेल पार्ट जो है वो मेन पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो बन जाता है तुम्हारा एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम सेइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज वॉल्स, तो उसमें से एसेंशियल वॉल्स हो जाता है मेरा एंड्रोशियम एंड gynoecium, that is my essential wall. अब बचा हुआ कैलिक्स और करोला, तो कैलिक्स और करोला भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, बट इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन डायरेक्टली. ओके, इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन द सेंस ये कैलिक्स और करोला वो पार्ट नहीं है जो गैमेट फॉर्मेशन बनाने का काम करेंगे. तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे accessory whorls. Okay, so you have essential whorls, you have accessory whorls. अब accessory क्या कि directly participate नहीं करेंगे but it will help in the reproduction, whereas essential whorl मतलब क्या कि ये वो part, main part of the flower है which will actually be involved in reproduction, or you can say कि fusion of the gametes, that is fertilization. Okay, so this is about your flower का structure. तो अगर तुमको structure भी detail में देखना है तो उसमें भी, because obviously you will have to study the structure of the flower, तो उसमें अगर तुम देखने जाओगे तो your female part, काम करता है हम लोग वो draw कर लेता. So when I am drawing your मेल पार्ट, तो मेल पार्ट जो है उसके पहले तुम लोग फीमेल पार्ट देख लो कि फीमेल पार्ट कैसा दिखता है तुम्हारा. कि ये होता है तुम्हारा ऊपर का टिप, राइट? यू हैव अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, राइट? एंड देन यू हैव अ बल्ज, राइट? एंड लुक्स weird. It looks like a bulge, right? This becomes your female part of the flower. तो इसको हम क्या बोलते हैं? This together. अब इसकी बात करें, ये part, this is called your stigma, right? Which is a sticky part, जो हम आगे स्टडी करेंगे कि exactly उसमें होता क्या है. Together, this is called as style, okay? And this is the part जहां पे तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल का, जो है तुम्हारा ओवरी. एंड यही वो ओवरी है जहां पे तुम्हारे फीमेल पार्ट के एग्स बनते हैं. ओके, सो दिस बिकम्स योर फीमेल, दैट इज कंप्लीट गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. वेयरएज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, तो मेल का सिंपल सा है, जहां पे ये ओवरी खत्म होता है उसी रीजन से मेल्स विल बी जस्ट हैविंग अ फिलामेंट एंड दे विल बी हैविंग एंथर जो कि बाइलोब्ड दिखता है. तो एक इस तरफ से भी आ सकता है, एक इस तरफ से भी आ सकता है. तो इट विल लुक लाइक दिस. गॉट इट? सो इनके पास क्या है? दिस इज एंथर
and this is filament. Got it? अब ये जैसे यहाँ पे फीमेल पार्ट में ओवरी वो स्ट्रक्चर था जहां पे तुम्हारा मेन व्हाट वी से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, सेम वे इवन मेल में एंथर इज द पार्ट जहां पे तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन होता है. ओके, सो ये गैमेट फॉर्मेशन के दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेट फॉर्मेशन के दो मेन साइट्स, वन इज ओवरी, वन इज योर एंथर. ओके, now let's talk about your calyx and corolla. Now calyx and corolla, flower के नीचे अगर तुम notice करोगे, you have this small leafy structure ऐसे, you have ऐसे small leafy structure, then you have this bulgy ऐसा structure रहता है फ्लावर के एकदम एंड में. तो ये जो एंड वाला स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, राइट ना. अभी वो दिखने में ऐसा है कि क्यों, मतलब क्यों जरूरत ही क्यों है तुमको कैलिक्स की. इफ यू विल चेक द स्ट्रक्चर, अभी लेट मी स्पेसिफाई व्हिच फ्लावर आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शू फ्लावर. तुम शू फ्लावर को देखोगे तो नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट जो हमको दिख रहा है कि दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ नीचे का मेन फाउंडेशन पार्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट योर होल फीमेल पार्ट, योर मेल पार्ट, देन योर petals and everything all are stacked together within this calyx. So this calyx is basically holding it together. ओके, सो ये जो मेन पार्ट है तुम्हारा नीचे का वो कैलिक्स हो जाता है. एंड देन कम्स योर कोरोला विच इज ऑब्वियसली तुम्हारे पेटल्स होते हैं, राइट. नाउ ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ पेटल्स द वे यू वांट. दीज आर द कलरफुल पार्ट्स विच इज पेटल्स. These are green part, okay. Your calyx is green part, your petals can be colorful. अब वो depend करता है कि वो flower में कौन सा chloroplast है. Now what is chloroplast? I'm not writing it because I'm talking about something additional to this. Chloroplast is what? Chloroplast is nothing but a cell organelle होता है जिसमें तुम्हारे पिगमेंट्स होते हैं, और जो पिगमेंट वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा वही कलर दिखेगा. जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वी ऑल नो दैट ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज द लाइक मोस्ट कॉमन एग्जांपल व्हिच एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ. ग्रीन कलर क्यों दिखता है प्लांट का? प्लांट लुक्स ग्रीन इन कलर बिकॉज प्लांट हैज क्लोरोफिल इन इट, राइट. एंड ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल, राइट. तो ये सेल ऑर्गेनल है, वो सेल ऑर्गेनल में क्लोरोफिल है, एंड दिस क्लोरोफिल इज द वन व्हिच इज ग्रीन इन कलर, एंड दैट्स व्हाई द होल दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो हमको ग्रीन कलर का दिखता है. ओके, सो दैट्स. अभी जैसे दिस इज ऑल्सो आंसरिंग वन मोर क्वेश्चन कि कैलिक्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है. तो कैलिक्स ग्रीन कलर का है, मतलब कैलिक्स के अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल है. Whereas when I'm talking about petals, that is corolla, तो रेड कलर के लिए अलग पिगमेंट होगा, येलो कलर के लिए अलग पिगमेंट होगा, राइट. वी हैव पिगमेंट्स लाइक xanthophylls, राइट, एंथोसाइनिन्स. तो ये अलग अलग तुम्हारे पिगमेंट्स हैं, और वो पिगमेंट के बेसिस पे तुम्हारे पेटल्स के कलर होंगे. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट flower का structure. Now you can associate all the four parts and then you can draw the final structure. So if you want, let's just draw the final structure of the flower over here itself, because this is a very common question which is asked, let that be your boards or entrance. ये question पूछा ही जाता है. They can give you the basic diagram of the flower and they can just put an arrow and then ask you कि just label it. Mostly boards में, not for entrance, but yeah, this question is very common, so you should be aware कि how you're supposed to draw the diagram of the flower. तो लेट्स सी, जैसे अभी हम लोग बना लेते हैं तुम्हारा. आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर्स so that it will be easy for you to differentiate between different parts of the flower. Let's first draw. Always I'm suggesting always draw female reproductive part first, because that is covering the center of your flower. तो एक बार तुम्हारा center clear हो जाता है, then whatever part you are adding to your flower, it will automatically get associated easily. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, उसमें तुम्हारा स्टिग्मा, राइट. ये तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, ये तुम्हारा स्टाइल हो गया, एंड दिस इज योर
ओवरी। ओके, ठीक है। अब ये ओवरी के अंदर ऑब्वियसली यू विल हैव ओव्यूल, जो हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ओव्यूल एग्जैक्टली उसके अंदर एग्स बन कैसे रहे, वो हम गैमेट फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, विच इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये हो गया। इसके बाद लेट मी टेक सम अदर कलर एंड ड्रॉ योर एंथर्स। ओके, ये बन गया तुम्हारा एंथर। आई एम यूजिंग येलो कलर फॉर एसेंशियल वॉल्स, लाइट येलो फॉर योर फीमेल एंड डार्क येलो फॉर योर मेल। ओके, ये अभी और भी बना सकते हो, मैंने 4 बनाए, तुम और 2 ऐड कर सकते हो फ्रॉम ईच साइड, दैट इज कंप्लीटली योर विश। ओके, नेक्स्ट आई एम ड्रॉइंग माय सेपल्स, अरे कैलिक्स, सॉरी सेपल्स बोल रही हूँ मैं। Actually, these are called as sepals only because जो green leafy part होता है नीचे का, उसको हम sepals बोलते हैं, and उसके इसके नीचे जो होता है उसको हम thalamus बोलते हैं। Okay, so ये हो गया हमारा sepals, green leafy part, जो calyx का part आ जाता है तुम्हारा completely, and then we will draw हमारा main flower, that is our corolla. Okay, so that will be your corolla, and that is it for your complete structure of flower. Okay, so next topic is your male, sorry, I said female, so next topic will be your male reproductive system. Okay, okay, so this is your male reproductive system. अब male reproductive system को हम बोलते हैं androecium, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, right? So we call male reproductive system को together we called as androecium, and जो part होते हैं ये androecium के जो members होते हैं, so androecium के members को हम बोलते हैं stamen, right? कौन कौन से member होते हैं यहाँ पे? एक होता है filament and anther. Yes, very good. We have anther and we have filaments, जिसमें से anther is the part जहां पे तुम्हारा gamete formation होगा, right? So this is your anther part, ये हो गया तुम्हारा female part, sorry, filament part. Okay, so that is your male reproductive system in general. ये दोनों को हम मिला के बोलते हैं stamen. तो let's see, पहले anther का part study कर लेते हैं, ठीक है? तो let's check on कि anther का structure कैसा होता है. Okay, now anther, I hope this color is okay, or else I'll just change. Yeah, so we're gonna talk about anther. तो anther क्या है? वो जो तुम्हारा bilobed structure था उसी को हम anther बोलते हैं. anther के अंदर अगर तुम देखोगे तो obviously anther gamete बना रहा है. जो male gamete होता है, male gamete in flower, वो क्या होता है? It is pollen grain, right? मतलब when I'm talking about male gamete is nothing but pollen grain. तो ये pollen grain है जो participate करने वाला है into reproduction, right? So this is male gamete and that is pollen grain. It's not visible. Okay.
तो तुम्हारा पोलन ग्रेन किसके अंदर बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा मेरे एंथर के अंदर, राइट? ये एंथर जो है, अब पोलन ग्रेन बन रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ सैक होगा, तो वो सैक को हम बोलते हैं पोलन सैक। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बनता है इनटू पोलन सैक। तो पोलन सैक के अंदर बनेगा तुम्हारा पोलन ग्रेन। ओके, एंड अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको दो टाइप के दिखेंगे। एक होता है डाइशियस, ओके, यू हैव डाइथिकस एंथर, जहां पे तुम्हारे पास 4 पोलन सैक्स है, एंड दैट इज व्हाट वी गोना स्टडी ओवर हियर, कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास पोलन सैक है, वो सैक तुम्हारे पास किस तरीके का है? यू हैव डाइथिकस, you have diathecus anther. That means डाइथिकस एंथर का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे पास 4 पोलन सैक होंगे, ठीक है? 4 पोलन सैक मतलब कैसा होगा? आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट रफली। सपोज दिस इज द एंथर, 1 पोलन सैक, 2 पोलन सैक, तीसरा और चौथा, ऐसे टेट्राड फॉर्मेशन में होगा, और इसके अंदर ढेर सारे तुम्हारे पोलन ग्रेन बनते जाएंगे। ओके, एंड योर एंथर का भी स्ट्रक्चर अगर तुम देखने जाओगे तो एंथर इज नथिंग बट उसके ऊपर का कवरिंग रहेगा ऐसे। दिस विल बी द कवरिंग, एंड दैट इज व्हाट हाउ इट्स गोना लुक। दैट्स व्हाई अगर हम एंथर को देखने जाते हैं तो वो बाई लोब दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि 2 लोब है। तो 2 लोब इसलिए बिकॉज इट इज डाइथिकस, दैट मीन्स उसके पास 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। ओके, तो अगर 4 पोलन सैक्स है तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज टेट्रास्पोरोजिएट, राइट? व्हाई? टेट्रा इज फॉर 4, राइट? तो 4 टेट्रा के लिए, स्पोरोंजिएट क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पोलन सैक बनने वाले हैं, तो ये 4 तुम्हारे पास अलग अलग सैक्स प्रेजेंट है जहां पे पोलन ग्रेन बनेंगे, राइट? So you have the word, it will be also called as tetrasporongiate. Why? Because you have 4 pollen sacs. Okay, so these are the terms which is necessary when you are studying the structure of the anther, कि ये सारे terms जो है essentially should be included when you are talking about, when you are defining anther. तो anther में क्या है? anther बनेगा, एक तो तुम्हारा मेल गैमेट बनेगा। ओके, तो मेल गैमेट में मेन वर्ड्स क्या क्या आने चाहिए तुम्हारे, जो हाईलाइट होने चाहिए? एक हो गया पोलन ग्रेन, कि वो पोलन ग्रेन बनाने वाला है। पोलन ग्रेन में ही समझ जाता है कि वो तुम्हारा मेल गैमेट है। ओके, पोलन ग्रेन किस में बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा पोलन सैक में, राइट? दिस इज डाइथिकस एंथर। क्यों डाइथिकस बोल रही हूँ? क्योंकि एक तो ये बाइलोब्ड है और उसके अंदर 4 पोलन सैक है, जिसके वजह से हम उसको नाम देते हैं टेट्रास्पोरोंजिएट। Okay, so these are the 4 important terminologies when you are studying the structure of anther. Okay, now let's see the TS of anther. TS means क्या? TS means your transverse section of anther. मतलब क्या कि अभी जैसे ये anther है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, right? If I'm cutting it यहाँ से, तो ये वाला जो पार्ट मुझे दिखेगा वो होता है मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन। वही मैं अगर ऐसे कट करूंगी, इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, राइट? सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। टीएस ऑफ एंथर। ओके, नाउ टीएस ऑफ एंथर, बट ऑब्वियसली बात है कि इसमें तुमको बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज यू नो यू हैव very large amount of small cells, but all you have to bother about, don't freak out by looking at the diagram in your textbook, because textbook में diagram बहुत ऐसे मतलब ढेर सारे cells हैं, सब एक ही color के हैं, and you will be like इसमें क्या label किया है? You are literally, there's no need to bother about that, because all you have to bother is same structure बनाना है तुमको, पूरा anther तुम्हारा same दिखने वाला है। What you need to remember is कि the sequence of layer, कि सबसे ऊपर कौन सा layer है, उसके नीचे कौन सा layer है, उसके नीचे कौन सा layer है, that is all you have to bother about, and just label it directly. Okay, so let's see कि पहले I'll directly tell you what are the labels and then we'll draw the diagram.
ओके तो टीएस ऑफ एंथर में जो है सबसे पहला लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर, बट अब इसी बात है हमेशा हम लोग, तुम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ लो बॉटनी में, हमेशा व्हेन वी आर स्टडिंग की दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल द आउटर मोस्ट लेयर एज एपिडर्मिस, राइट? व्हाई? dermis, derma, layer, right? Derma is for skin, so derma is nothing but layer. Epi is for outer. Okay, so epidermis, the word itself says कि ये सबसे बाहर वाला layer होगा. Okay, epidermis is the outermost. Let me just write. It is the outermost layer, या फिर I should say it is outermost protective layer of the anther. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल, राइट? उसके बाद अब ये जो एपिडर्मिस है ये बेसिकली बनते हैं फ्लैटेंड सेल से. ओके तो तुम्हारा जो एपिडर्मिस वाला जो सेल लेयर है वो बहुत फ्लैट सेल्स होंगे. ओके एपिडर्मिस का लेयर आने के बाद नेक्स्ट लेयर आता है तुम्हारा एंडोथीशियम. Endothelium. Now when I'm saying endothelium, it is also called as sub-epidermal layer. Okay? एंडोथीशियम को हम सब एपिडर्मल लेयर भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर है, वो सिंगल के जस्ट अटैच थी जो सबसे नीचे वाला एपिडर्मिस के फटक से नीचे वाला जो लेयर होता है वो होता है तुम्हारा एंडोथीशियम लेयर. दैट इज योर सब एपिडर्मल लेयर. ओके और ये जो सब एपिडर्मल लेयर होता है ये थोड़े से होते हैं तुम्हारे एलोंगेटेड सेल्स. ठीक है तो जैसे तुम्हारा एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस एकदम फ्लैट सेल्स थे, वैसे ही तुम्हारा सब एपिडर्मल लेयर जो है, जो जिसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं, वो तुम्हारे थोड़े से एलोंगेटेड सेल्स होते हैं. ओके so that is how you if you remember it this way point wise it will become easy for you to memorize it for a longer time. Okay so ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद आ गया सब एपिडर्मल लेयर, दैट इज योर एंडोथीशियम. एंड एंडोथीशियम के बाद धीरे धीरे यू नो फाइब्रस थिकनिंग बढ़ने लगती है. जो तुम्हारा इनर ऑफ द एंडोथीशियम लेयर होगा वो तुम्हारा थिकर लेयर होगा. ओके एंड दैट थिकर लेयर यू नो इट विल गो ऑन. जो वॉल्स होंगे वो 1 से 2 वॉल्स होंगे. अब तक हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब तक हम बात कर रहे थे एक सिंगल लेयर की, कि यू नो एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है. एंडोथीशियम की वैसी बात कर रहे हैं तो एंडोथीशियम विल बी बेसिकली अ फाइब्रस लाइनिंग. जो इनर पार्ट होगा उसका इनर टू एंडोथीशियम, उसके बाद तुम्हारे 1 से 2 लेयर्स आ जाएंगे. तो अब तक तुम्हारे सिंगल लेयर्स थे. नेक्स्ट यू विल गेट मिडल लेयर. ठीक है एंडोथीशियम के बाद आ जाएगा तुम्हारा मिडल लेयर. और ये मिडल लेयर 1 से 2 लेयर का होगा. ठीक है मिडल लेयर जो होगा वो 1 से 2 लेयर का होगा, जो सीधा एंडोथीशियम के बाद होगा. एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के बाद डायरेक्टली तुम्हारा मिडल लेयर आ जाता है. ओके एंड दिस मिडल लेयर विल बी 1 to 2 लेयर्स. अब ये जो होगा दैट इज बेसिकली तुम्हारा यू नो दिस इज द डिसइंटीग्रेट पार्ट जहां पे योर एंथर इज मैच्योर. ओके नेक्स्ट लेयर इज टपेटम. ठीक है योर नेक्स्ट लेयर इज टपेटम. टपेटम इज द innermost, it is the innermost nutritive layer एंथर का. ठीक है तो ये हो गया एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस बोलेंगे. एंडोथीशियम सब एपिडर्मल हो गया, मतलब एपिडर्मिस के थोड़ा सा मतलब फटाक से अंदर, उसके एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर जो है एंडोथीशियम, जो थोड़ा एलोंगेटेड होगा. फिर आता है मिडल लेयर, जो 1 से 2 लेयर जो है वो सिर्फ मिडल लेयर का होगा.
नेक्स्ट आता है टपेटम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा, एंड द स्पेशलिटी ऑफ टपेटम इज दैट टपेटम जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर होगा. व्हाई आई एम सेइंग न्यूट्रिटिव, क्योंकि तुम्हारा जो एंथर मतलब जो तुम्हारा पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगा, वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए वो पूरा प्रोसेस जो है जहां पे पोलन फॉर्मेशन होगा, ये पूरा फॉर्मेशन करने के लिए you need energy, you need nutrition, and that nutrition will be provided by tapetum. Okay, so the tapetum will be the innermost layer. और फिर tapetum जो है enclose करेगा तुम्हारा sporogenous tissue. मतलब ये तुम्हारे layers थे. Okay, let me be very clear. These four were the only layers you will get in the anther. Apart from this layer, ये layer enclose करेगा. किसको enclose करेगा? It will enclose sporogenous tissue. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. Now, let me tell you one more thing. अभी यहाँ पे microspore word थोड़ा highlight हुआ है, इसलिए I'm telling you right now. Microspore is nothing but it is just an another word for your pollen grain. तो तुम्हारा जो pollen grain है, वो pollen grain is nothing but microspore. तो microspore को बनाने के लिए obviously you know अभी mother cells क्यों बोल रहे हैं? Because इसमें से वो पैदा हो रहा है. ओके, तो ये तुम्हारे सेल्स है, यही सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर को पैदा करेंगे. दैट्स व्हाई हम उसको सिंपल नाम दे रहे हैं, rather than naming it some new term, we are using simple term कि this is, you know, this will lead to this will give birth to pollen grain, this will give birth to microspore. So let's name it microspore mother cells. Okay, which is a sporogenous tissue. Why I'm calling it a sporogenous tissue? Because this will participate in the formation of spores. Okay, this is your complete. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ actually, that justify हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे 4 लेयर ऑफ एंथर. एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर जो फ्लैट सेल्स है. फ्लैट सेल्स के सीधा अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, जो सब एपिडर्मल लेयर है, विच इज एलोंगेटेड सेल्स. मतलब इट इज नॉट लुकिंग लाइक एकदम फ्लैट, वो थोड़ा सा राउंड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा. Whereas उसके भी अंदर वाले 3-4 लेयर या 1 से 2 लेयर जो होते हैं वो होते हैं मिडल लेयर. ठीक है, मिडल लेयर के बाद आता है तुम्हारा टपेटम. टपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर. अब ये इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फटाक से न्यूट्रिशन दे रहा है. किसको न्यूट्रिशन दे रहा है? इट एनक्लोजेस. अभी जैसे ये टपेटम है, ठीक है, ये टपेटम एनक्लोज कर रहा है किसको? यहाँ पे आएगा तुम्हारा sporogenous tissue, which we call as microspore mother cells. Okay, so let's just quickly check the structure. ठीक है, structure अगर देखने जाए हम, so the outermost layer which you will draw, okay, let me just use different thing. Outline है, okay, पहले एकदम simple सा outline बना लेते हैं ताकि diagram बनाने में easy हो. So this is gonna be the outline, right? This is gonna be the outline. ये एक हो गया, ठीक है. फिर आएगा तुम्हारा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे का भी लेयर. यहाँ का बना दो, यहाँ का भी बना दो. ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, ये भी बना दो. And once it is made, make a hollow space till the top, and this is gonna finish your row. Actually try to keep this more narrow so it will look better. So this is the outline. Okay, तो basic याद रखना, फटाक से cells बनाना शुरू मत करो, because you know if you directly will start drawing the cell, it will be very difficult for you to differentiate बाद में बनाने के लिए. ठीक है, अब बनाते हैं हम अपने सेल्स. तो सेल्स कैसे हैं? अब मेरा जो सबसे बाहर वाला सेल्स था वो मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत फ्लैट है. सी आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन पार्ट.
मैं सिर्फ ये पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी का यू कैन कंटिन्यू बिकॉज इट्स लुकिंग एग्जैक्टली सेम, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। ओके तो ये ऐसे कंटिन्यू करते करते यू नो दीज आर द फ्लैट सेल्स, ऐसे तुम्हारे फ्लैट सेल्स दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स के बाद एज आई सेड कि पतले लेयर्स होंगे किस चीज के, इट विल बी elongated cells, elongated cells इसलिए आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। ठीक है, ये एक elongated cells हो गया मेरे एंडोथीशियम का। ओके दिस elongated cells, अभी इधर ऑब्वियसली इट विल गो वेरी थिन बट स्टिल आई एम ड्राइंग इट। फिर आता है तुम्हारा मिडल लेयर, I'm drawing one layer. You can just assume it to be multiples because अगर मैं यही ड्रॉ करूंगी ना तो, या फिर मैं ऐसे बना देती हूँ, इजी हो जाएगा। तो ये एक से दो लेयर जो है ये होता है तुम्हारा मिडल लेयर। ठीक है, once the middle layer is done then you have your tapetum. Okay, you have tapetum like round structure में, or else wait I'll do over here. तो ये समझो ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर है, here you will have your tapetum. ठीक है, ऐसे तुमने फ्लैट सेल्स बना दिए और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस डाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, योर सेल्स शुड हैव न्यूक्लियस, यू कैन नॉट पुट इट विदाउट न्यूक्लियस। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस डाल दिया टपेटम के अंदर, दैट विल बी योर टपेटम। एंड फिर उसके अंदर तुम्हारे स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, विच ऑल यू विल हैव टू डू इज जस्ट सिंपली यू नो ड्रॉ द सेल्स। उसके अंदर का स्पोरोजिनस टिश्यू यू विल जस्ट ड्रॉ द सेल्स ऐसे। Okay, I'm not drawing it completely. It will be complete waste of time. तुम लोग उसको एकदम अच्छे से डेकोरेट करके you can draw it that way. So let's just simply label it. तो लेबलिंग में क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, ये लेयर, ये क्या है तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, राइट। एपिडर्मिस के बाद वाला जो लेयर है दैट इज योर एंडोथीशियम। यस परफेक्ट, एंडोथीशियम। उसके अंदर वाला लेयर will be your middle layer. perfect, it will be your middle layer. Then nutritive tissue Tapetum. tapetum, and then lastly you will have your, this will be your, perfect, it will be your sporogenous tissue. Okay, now because we are drawing this complicated diagram, I just want to give one tip, not just for this chapter but for your all chapters in your biology. Just a very common tip, whenever you are drawing a diagram especially like this, ये तो भी बहुत छोटा diagram है, ऐसे तुमको multiple ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े diagrams मिलेंगे। Always you know it's not related to this chapter at all but it's just an additional tip because it's very necessary. I've seen people doing this very basic mistake, but you know if you do this you तुम लोग जैसे करते हो that's not wrong, I'm not saying it's wrong, you will still get the marks, but by doing this you know you get this additional touch of good presentation, so definitely don't skip that point. Now points क्या थे कि जब ऐसे कोई डायग्राम आ रहा है जहाँ पे बहुत ढेर सारे लेबलिंग्स होने वाले हैं तो क्या करो कि ये सारा जो लेबलिंग्स है ये लेबलिंग्स को हमेशा ट्राई टू राइट इट इधर लेफ्ट साइड पे लिखो पूरा या तो पूरा का पूरा राइट साइड पे। Okay, that is point number one. Point number two is that arrows जो तुम बनाते हो ना, I have seen many people you know doing this ऐसा। Okay, तो पहली बात तो एरो कभी भी नाम के तरफ तो नहीं होना चाहिए। योर एरो शुड ऑलवेज बी टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्ट, कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको तुम लेबल कर रहे हो वो, और प्लस ऐसे तो नहीं ड्रॉ करना। यू ट्राई ऑलवेज ट्राई टू यूज ईदर यू नो इफ यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं बट यू नो एक होता है रैंडमली, अभी जैसे मैंने किया, आई एम नॉट यूजिंग अ रूलर फॉर दैट बट इट्स स्टिल लुकिंग स्ट्रेट, तो ट्राई टू डू दैट। और एल्स बहुत टाइम है तो ठीक है रूलर यूज कर लो, बहुत जन करते हैं। ओके, सो दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर टीएस ऑफ
एंथर। अभी इसमें एक और एक चीज है जो मैंने उसके बारे में बात नहीं की, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको बनाना पड़ेगा। वो है जब तुम ये बाकी के लेयर्स बनाओगे ना, तो यहाँ पे तुमको कुछ अलग कलर में या शेड्स में एक सेल, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाना पड़ेगा। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है क्या, सिंपल वे में बता रही हूँ। ये ग्रुप ऑफ सेल्स इज नथिंग बट आई एम ऐसे एरो बना रही हूँ क्योंकि आई डोंट कंसिडर दिस टू बी actually the part of TS of मतलब वो it's just there but it is not participating in pollen grain formation. This is nothing but this is connective tissue. ओके, कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव अलग आ गया। ओके, सो दिस इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है तुम्हारा एपिडर्मिस, योर एंडोथीशियम, योर मिडल लेयर, योर टपेटम, योर स्पोरोजिनस टिश्यू। एंड ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर तुम्हारा बनेगा फाइनल पोलन ग्रेन। ओके, या so that is it for, let's close it over here only. From next lecture then we can start with different पूरा आगे का कि वो पोलन ग्रेन फॉर्म कैसे हो रहा है, बिकॉज अब तक जो हमने देखा वो था कि पोलन ग्रेन क्या था, राइट, कि पोलन ग्रेन एग्जैक्टली कौन से सैक में, बट लेटर ऑन देन वी कैन कवर अप विथ कि व्हाट इज द स्टेप्स हाउ द पोलन ग्रेन इज फॉर्म। ओके